آغاز تازہ اور اہم خبر سے کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کی جانب سے بنایا گیا ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفہ، کیا تفصیل ہے اس کی؟ دیکھیں، احسن اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست جو وہ دائر کر رکھی تھی، اور آج بہت ہی اہم پیش رفت اس میں ہوئی ہے۔ بہت بڑا ریلیف ملا احسن اقبال کو کہ وہ جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس عطا من اللہ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے احسن اقبال کی درخواست پر جو وہ آج سماعت کی ہے، اور اس میں دوران سماعت احسن اقبال اپنے وکلا کے ہمراہ بھی پیش ہوئے تھے، اور ساتھ میں نیب حکام جس میں نیب کے جو وکیل تھے اور تفتیشی افسر وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور بار بار چیف جسٹس عطا من اللہ نے جو وہ پوچھا کہ یہ جو معاملہ تھا سارے، اس میں نقصان آخر کس کو ہوا ہے، اس میں کہاں کرپشن ہوئی ہے، اور متعدد بار جو ہے وہ کرپشن کا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا نیب حکام سے، لیکن نیب حکام اس پر جواب دینے میں جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے، اور بار بار جو ہے وہ پوچھا گیا۔ اور ساتھ میں چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ نارووال سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ شہریوں کی فلاحی کے لیے پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ نیب نے کرپشن کا کیس بنایا اور پروجیکٹ کو جو ہے وہ روک دیا۔ اس میں مزید چیف جسٹس نے کہا کہ کیا احسن اقبال کے پاس وزارت بین الصوبائی رابطہ میں کوئی عہدہ تھا، یا 2009 میں کیا جو احسن اقبال تھے ان کے پاس کوئی عہدہ تھا، اور چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اس کیس میں کرپشن کا ایک بھی نقطہ جو وہ ثابت نہیں ہوتا۔ کئی سماعتیں ہو گئی ہیں، نیب کو ہم نے اسی لیے اتنی سماعتوں کی جو اجازت دی تھی، لیکن اب تک کوئی کرپشن کا آپ اس میں جو ہے وہ ایک بھی نقطہ آپ جو ہے وہ سامنے نہیں لا پائے۔ نقصان تو آپ نے پھر بھی کیا ہے، اگر آپ کے دلائل کو مان بھی لیں تو آپ پر اس میں کیس جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے نیب کو کہا کہ کیس جو ہے وہ نیب پر اس پہ جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اس میں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیا کیس نہیں ہے؟ کس کی حکومت جو ہے وہ 2009 میں تھی؟ چیف جسٹس عطا من اللہ نے جو ہے وہ نیب حکام سے یہ استفسار کیا، اور نیب حکام نے اس پہ کہا کہ 2009 میں مارشل لاء جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ تو احسن اقبال نے جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ احسن اقبال کو آپ نے کیسے پہ گرفتار کر لیا؟ جنہوں نے مارشل لاء لگایا تھا، جن کے دور میں یہ کیس بنا تھا، ان کو پھر آپ کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے۔ بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ آج احسن اقبال کو مل گیا ہے، اور جو ان کے خلاف نیب کی جانب سے جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کو خارج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ صحیح ہے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں؟ نیب آرڈیننس میں کیا آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ تازہ اور اہم ڈیولپمنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کی جانب سے بنایا گیا ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کی جانب سے بنایا گیا یہ ریفرنس، اسے خارج کر دیا گیا ہے، اور آج کی سماعت میں چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب آرڈیننس میں کیا آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کی جانب سے بنایا گیا یہ ریفرنس، اسے خارج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف نیب کی جانب سے بنایا گیا ریفرنس خارج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس عطا من اللہ نے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز نے۔ عرفہ، ایک بار پھر اس کیس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم سے شیئر کیجیے، اور آج جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے، جو ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے، وہ بھی ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، وفاقی وزیر احسن اقبال نے جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس خارج کرنے کی جو درخواست دائر کی گئی تھی، یہ ایک نارووال سپورٹ سٹی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ تھا جو نارووال میں بنایا گیا تھا، لیکن اس کو پھر روک دیا گیا تھا۔ تو اسی حوالے سے نیب نے جو وہ ایک کرپشن کا ان پہ الزام لگایا تھا، اور گرفتار بھی احسن اقبال کو جو وہ کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے یہ ریفرنس جو ہے وہ خارج کرنے کی درخواست احسن اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ آپ کو سماعت کے حوالے سے اگر بتائے چلیں تو احسن اقبال اپنے وکلا کے ہمراہ آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، جبکہ نیب حکام بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے، جس میں تفتیشی افسر عرفہ فیروز ساتھ ہی رہے گا۔ احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کی مہم چلائی تھی، اس سلسلے کے حوالے سے عمران نیازی اور جسٹس جاوید اقبال نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلائی تھی، اس سلسلے میں بنایا تھا، اور جس ریفرنس کی پاداش میں مجھے بھی اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے
कैदियों की चक्की में वक्त गुजारना पड़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, तकरीबन 1 घंटे लगातार दर्जनों दफ़ा चीफ जस्टिस ने नैब से सवाल किया कि इस रेफरेंस में हमें बताएं कि आसन इकबाल के ख़िलाफ़ करप्शन का क्या सबूत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई करप्शन का किसी चीज़ में शाइबा भी है वो भी बताएं, और नैब ये तस्लीम करने पे मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज मैं पाकिस्तानी कौम को ये बात कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो पिछले कई सालों से इस कौम में झूठ बोल बोल के चोर डाकू की फिल्म चला रहा है, और उसने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए, उन मुकदमों को जवाज़ बनाया कौम को गुमराह करने के लिए, मेरे ख़िलाफ़ अपने हमायतियों से चोर के नारे लगवाए। और जब उन लोगों ने अपनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए माज़रत की, तो इसके बाद इमरान खान ने 2 जलसा आम के अंदर आसन इकबाल डाकू है के नारे लगवाए और तकरीर में बार बार इस चीज़ को दोहराया। मैं इमरान न्याजी को कहना चाहता हूँ कि आओ आके देख लो तुम्हारे झूठे इल्ज़ामों की क्या हकीकत है। तुमने जो बहतान लगाए हम पर, तुमने जो झूठ बोल बोल के झूठे मुकदमे लगाए, आज ये उसी का खमियाजा है कि तुम सड़कों पे जलील और ख्वार होते फिर रहे हो। आज ये उसी का नतीजा है कि तुम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपनी जमात के उन तमाम कारकुनों का, अपने नारोवाल के वोटर्स का और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस झूठ के मुकदमे के दौरान अपनी पूरी गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट मुझे दी। मैं मीडिया के उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुसलसल जिस दिन से ये केस बनाया गया था इसका तज्जिया करके लोगों को बतलाते रहे कि ये केस झूठ पे मबनी है, लेकिन इमरान न्याजी को शर्म नहीं आई। वो इस केस के ज़रिए हमें गिरफ़्तार करता था, गिरफ़्तार करके जेलों में रखता था और जेलों में कैमरे लगा के ये देख के ज़हनी सुकून तलाश करता था कि हम जेल के अंदर किस बुरे हालत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कभी इमरान न्याजी हमारे हौसले नहीं तोड़ सका। हम व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करते हुए नहीं आते थे। हम इन झूठे मुकदमों का सामना करने के लिए सीना तान के और इसी तरह सूट पहन के आते थे जैसे आज़ादी में पहनते हैं, इसलिए कि हम ये बतलाना चाहते थे इमरान न्याजी को कि तुम्हारे इन झूठे केसों से हम दबने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान जिस आग में जल रहा है, इस आग को लगाने वाला इमरान न्याजी है। आज अदालत ने बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान न्याजी और नैब से की जाएगी, चूँकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। आज ये भी पता चला कि चेयरमैन नैब ने एक कोई गुमनाम सा अखबार है जिसमें झूठी खबर लगी कि जी 800 मीटर के फासले पे 6 अरब रुपए लगा दिए गए, जबकि मंसूबे की कुल लागत ही 2.9 अरब थी। उसके बारे में किसी ने झूठी खबर लगाई कि 6 अरब रुपए लगा दिए गए हैं,
जबकि बॉर्डर से ये 14 किलोमीटर दूर था। किसी ने 800 इस केस के अंदर करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी जो है उजाड़ा है झूठ को सच साबित करने के लिए। इसके बावजूद वो झूठ को सच नहीं बना सका और सच साबित हुआ है। मंसूबे का नुकसान किया, हमारी किरदार कुशी की, हमारी फैमिलीज़ को अज़ियत से गुजारा, हमारे दोस्तों को अज़ियत से गुजारा। लेकिन मैं नारोवाल के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, अपने हलके के लोगों का, जिन्होंने इस तमाम किरदार कुशी की मुहिम को मुस्तरद किया और पहले से ज़्यादा मेरे साथ वो यकजहती के साथ खड़े हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारी जमात के कारकुन, उन्होंने और मेरी क़यादत ने जिस तरह इन केसेस के दौरान हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। एहसन इकबाल साहब, क्या दूसरे नैब के मुकदमात की तरह क्या आपके खिलाफ बनाए गए नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम के इस मुकदमे के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था? देखिए, ये जो केसेस बनाए गए ये खालिसतन इमरान नियाज़ी की ख्वाहिश पे बनाए गए। चूँकि इमरान नियाज़ी को हमारी मुखालफत, हमारी अपोजिशन, हमारी तकरीरें पसंद नहीं थी, वो हमारी आवाज़ें खामोश करा। इमरान नियाज़ी ने एक एक करके फरमाइशी तौर पे नैब के साथ मिलकर जो नैब नियाज़ी गठजोड़ था उसका तो अब सारा कच्चा छटा खुल चुका है। किस तरह चेयरमैन नैब को इमरान नियाज़ी ने ब्लैकमेल किया और उसके ज़रिए वो रिमोट कंट्रोल से नैब को और चेयरमैन नैब को चलाता था और इमरान की फरमान नैब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर झूठे केस बना के उन्हें जेलों में डालते थे। कई महीने हमें जेलों में रहना पड़ता था और आज चीफ जस्टिस ये कहने पे मजबूर हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जिसका मकसद हमारी किरदार कुशी था और हमारी आवाज़ों को खामोश कराना था। थैंक यू। को संजीदा लेंगे और सूबाई हुकूमत बाहर से इमदाद आ रही है, उनकी वसासत से अगर जा रही है तो उनको ठीक लोगों तक पहुंचते हुए नज़र आना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। और मकामी तौर पर आप सहाफ़ी लोग भी देख रहे हैं सारी चीज़ों को और सियासी जमातें भी देख रही हैं, हमारी जमात भी सूरत हाल को देख रही है और इसको मकामी सतह पर आप ज़रूर उस पर तबसरा भी करें, उनको ज़ेर बास भी लाएँ ताकि हुकूमत को मुतनब्बे कर सकें। वन बाय वन करें, वन बाय वन सबको ले रहे हैं। तबाहकारी हो गई और दूसरी तरफ तो महंगाई, बिजली की सूरत में या पेट्रोल की सूरत में महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ जब जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसी टाइम जो 5 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये बढ़ता था, उसी टाइम हर एक जो सियासतदान चीखते थे। अभी क्यों खामोश है? अभी तक तो मजम्मत का भी बयान नहीं आ रहा है, क्यों आप इसके पीटीएम का सरबराह? बात मजम्मत की जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका ताल्लुक़ पॉलिसियों के साथ है। जिन पॉलिसियों के साथ हमने अपने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले किया मुआहदे करके, जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? IMF ने सब के हवाले तो आपने किया है, आपके अपने लोगों ने कहा है कि हमने सब कुछ उनको लिख कर दे दिया है। तो पॉलिसियाँ जो हैं वो असल में हिमायत या मजम्मत की बुनियाद होती हैं। उन पॉलिसियों के जो असरात होते हैं, हुकूमत की तब्दीली से वो असरात ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक वक्त तक उसके इंतहाई मनफी असरात बढ़ते चले जाते हैं। अब 3.5 सालों की वो नाकाम पॉलिसियाँ कि जिससे मुल्क में ये सारी माशी बदहाली पैदा की, 3-4 महीने के अंदर अगर आप कहें हाँ इजाफ़ा हुआ है, मैं ख़ुद यानी इस पर परेशान हूँ और हम इस पर हुकूमत पे और वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाल रहे हैं कि वो इसके लिए फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें। चुनांचे वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम मईशत को संभाल सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क़ुव्वत को हम बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पॉलिसी पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तनकीद का निशाना भी हम बन रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ
कि जहाँ तक PTI का या इमरान खान का ताल्लुक़, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़यादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारी में भी उसी तरह नाअहल साबित हुई। हुकूमत में जाने के बाद जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती और इसमें उनका किरदार ज़ीरो है, सिर्फ नुमाइश की हद तक। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो 25 ट्रक लेकर जाते हों और 25 ट्रकों में सिर्फ 2 ट्रकों का सामान हो और वो भी सिर्फ पीने के पानी का, इस तरह ड्रामे क्यों किए जाते हैं जी? और नाखून कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना, ये तो बड़ी आसान बात है जी। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी, और सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि पहले हुकूमतें 1 बाय 1 होती थी, अब सवालात भी 1 बाय 1 हो रहे हैं। तमाम लोग अपनी जगह पर ये बातें तो कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी हो, मामलात में बेहतर हो, पॉलिसी भी। 75 साल गुजर गए हैं, हम आज भी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, अदलिया की है, सियासतदानों की है या किसी और की है। 75 साल बाद भी आज हम भीख मांग रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग तड़प रहे हैं, लोगों का हालत गुजारा आप खुद देख रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ हूँ मैं, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है, ये अहम सवाल है और मैं ख़ुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूजी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है, वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान ने जिस तरह से आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की और इदारों की आपस में बन गई है, कि अगर इस तरह से होता रहे कि मुदाखलत भी हो इदारों में और आप सीनियर पॉलिटिक्स है, तो ये हमारे इदारे कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर इमरान खान के हाथ में हुकूमत आ जाए। आप PTI ने नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ ने तकरीर के हवाले, आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले मुशावरत की है, PTI ने अदालत जाने का फैसला किया। देखिए, अदालत आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी और ये जो ताज्जुब की बात यह है कि एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और उनको अब न कोई सियासतदान तस्लीम करता है, न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। प्लीज जी, सबको मौका मिलेगा। जो बयान दिया है इमरान खान ने, उसके आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया है कि मैं इसका जवाब दे दिया ना कि वो एक सियासी बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें नहीं चलती। JUI का क्या फ़ायदा है ऐसी बिल में? JUI की ज़रूरत तो नहीं है। ट्रांसजेंडर, ये JUI की ज़रूरत नहीं है, ये PTI की ज़रूरत है।
मौलाना फजलुर रहमान सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि FBI का कहना है कि $5000 या ज़ायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वालों को एयरपोर्ट पर रकम का बताना होगा। मुसाफिर को एयरपोर्ट पर रकम और सफ़र की तफसीलात से मुतालिक फॉर्म भरना होगा। ये भी बताया गया है FBI हुकाम की जानिब से बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों को $10,000 या ज़ायद रकम का बताना होगा। पाकिस्तान आने वालों को मुल्क में रहने की तफसीलात से मुतालिक फॉर्म भी भरना होगा।